सबसे सेटिस्फाइंग क्या लगता है, सबसे ज़्यादा तृप्ति होती है कि नहीं यार ये चीज़ के कारण मतलब मुझे व्हीकल पे आता हूँ, मेरे को मालूम है मैं ओप्पो में काम करूंगा तो मैं फ्लाइट में भी बैठूंगा। फैक्ट्री विजिट में हमने पहली बार देखा लाइफ में कि फ़ोन कैसे बनता है। एक्चुअली खुद का मकान नहीं था, पर मैंने ओप्पो में रहते हुए मैंने मेरा खुद का मकान भी लिया मैंने। और इससे पहले मैं जो जॉब करता था वहाँ पर मैं एज अ ट्रैवल में बस में करता था। आज खुद की गाड़ी है और खुद का घर भी है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ओएसी डायरेक्ट सीईओ से मिल सकता है कभी? को कौन सा सबसे ज़्यादा ऐसा भाई पसंद आ गया और आज भी याद आता है कि भाई वो फ़ोन आज भी याद आता है जो ओप्पो का F1s उस टाइम पे सेल्फी चैंपियन था। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा है जो लोग नहीं देख पा रहे हैं आपके काम में? स्टोर पे 8 से 10 कलाक खड़े रहते हैं। एक्चुअली में सर हम जो फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं वो कस्टमर के साथ करें, क्योंकि कस्टमर ही हमारी फैमिली है। कस्टमर खुद सामने से पूछता कि अब क्या नवा है, प्लस सर वेट एंड वॉच। इसीलिए सर रेनो सीरीज कही जाती है ट्रेंड सेटर, एक ट्रेंड सेट करते हैं हम। ઓપ્પો મેક યોર મોમેન્ટ્સના નવા એપિસોડમાં તમારું સ્વાગત છે અને આ એપિસોડમાં આપણે કંઈક નવું કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આજે આપણી પાસે એક નહીં બે નહીં પણ ચાર ગેસ્ટ છે અને આ ગેસ્ટ ખાલી ગેસ્ટ નથી, એક સાથે ટેબલ પર 30 વર્ષનો અનુભવ બેઠેલો છે એવું હું કહી શકું છું. તો સૌથી પહેલાં ગેસ્ટ સાથે આપણે વાત કરીએ. સાગરભાઈ, તમે હું છે ને તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન નહીં આપીશ કેમ કે મને લાગે છે કે હું વધારે આપી જ નહીં શકીશ સરખી રીતે. તો તમે કહો કે તમારું નામ અને તમારું એક્સપિરિયન્સ ઓપ્પો સાથે કેટલા વર્ષથી તમે કામ કરો છો? મારું નામ સાગર લખાણી છે સર. હું ઓપ્પો સાથે 5 વર્ષથી જોડાયેલો છું. મારું નામ અફરોઝ સોદાગર છે અને હું ઓપ્પો સાથે 4 વર્ષથી જોડાયેલો છું. ક્યા વાત. મારું નામ સબ્બીર અંસારી છે, હું ઓપ્પો સાથે 9 વર્ષથી જોડાયેલો છું. મારું નામ શેખ મોહમ્મદ અશરફ છે, હું ઓપ્પો સાથે 10 વર્ષથી જોડાયેલો છું. ક્યાં વાત ભાઈ, એટલે આખું એક સદી ઓલી દશક થઈ ગયું તમારું આખું. અને હવે તમે બધા ઓઈસી છો, સીઈઓ કે છે ઓપ્પોમાં, અને એમ અગર સાદા વ્યક્તિનો સમજાવો, સાદી ભાષામાં સમજાવો તો તમે પ્રમોટર છો જે સ્ટોરમાં એકચ્યુઅલી ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કામ કરે છે. તો હવે તમે સ્ટોરમાં કામ કરો છો, બરાબર. હવે મને એક બહુ ઉત્સુકતા છે જાણવાની કે એક જે બેસિક વસ્તુ જે મેં પણ કરી છે કે સ્ટોરમાં ખાલી એમને હું ઘૂસી જાઉં જોવા માટે કે જરાક ભાવ આવતો જરાક જોઈએ શું છે લેવું, એવું કાંઈ ના હોય. પણ તમે જે આટલા વર્ષોથી કામ કરો છો તમને કેવી રીતે ખબર પડે કે આ માણસ ટાઈમપાસ કરવા આવ્યો છે કે કંઈક ખરીદવા માટે આવ્યો છે? પર્ટિક્યુલર તો એવું ખ્યાલ નથી આવતો કે કસ્ટમર લેવા માટે આવે છે કે ખાલી ટાઈમ પાસ કરવા, પ્રાઇસ જાણવા, મોડલની ડિટેલ્સ જાણવા. પણ જ્યારે કસ્ટમર સાથે વાતચીત આવે છે એની સાથે અમે વાતચીત ચાલુ કરીએ છીએ તો એના શું ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આપે છે અમે ક્વેશ્ચન કરીએ તો એના ઉપરથી આઈડિયા લગાડી લઈએ છીએ કે લેવા લેશે કે આજે ઇન્ક્વાયરી કરે છે, અધર સ્ટોર પર ઇન્ક્વાયરી કરશે કે વોટ એવર, એ બધું ખ્યાલ આવી જાય છે. તમારું કોઈનું કંઈ અલગ સ્લેમ એવી જ વસ્તુ છે જેમ કે કસ્ટમર સ્ટોરના અંદર એન્ટર થાય છે અને પર્ટિક્યુલર બધા મોડલ ઉપર ફોકસ નથી કરતા, અધર બધા મોડલો ઉપર ડાયવર્ટ થાય છે. તો આ એક હિન્ટ આવે છે કે કસ્ટમર શાયદ ટાઈમ પાસ કરવા માટે આવ્યો છે યા એસીની હવા ખાવા આવ્યો છે. એક્ઝેક્ટ બને છે આમાં હું એક એડ ઓન કરીશ કે જ્યારે કસ્ટમર રાત્રે ક્લોઝિંગનો ટાઈમ હોય ને ત્યારે ઇનપુટ આવે જ છે કસ્ટમર. આવે ત્યારે એવું લાગે છે હવે જમીને કરીને ફરવા આવ્યા છે, અત્યારે ખાલી જોશે જ, એ લેશે નહીં, ચક્કર મારતા. हमारी भाषा में बोलिए ना एकदम सीधा, जैसे कस्टमर एंटर होता है ना हम देख के बता देंगे एच के है कि आर के है. तो हमारा एक कोड वर्ड है कि कस्टमर लेने वाला एच के है कि आर के है. क्या है एच के आर के? एच के का मतलब ये कि कंफर्म लेगा, आर के का मतलब ये है कि भाई ये टाइम पास है. अच्छा, ये मार्केट में इंडस्ट्री में हमने नाम रख दिया ये कस्टमर एच के है कि आर के. तो मतलब अब मुझे लग रहा है मैं बहुत सारी जगह पे एच के था और मैंने टाइम पास किया था. तो ये अब तो ऐसा भी हो गया ना कि चलो टाइम पास करने वाला है वो तो अलग, पर आजकल ऐसा भी हो गया कि सब रिव्यूज देख के आते हैं, 10 अलग अलग रिव्यूज देख के आते हैं और आपका इंटरव्यू लेते होंगे कि अरे भाई तुमको ढंग से नहीं पता, तुम अच्छे से समझाओ. तो अब क्या वो अच्छा हुआ कि खराब हुआ है? पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, आज के जमाने में ऐसा है कि आदमी सब सीख के आ रहा है. सर बहुत ही अच्छा हुआ है. उसका रीजन ये है कि कस्टमर को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, कस्टमर भी बहुत जल्दी शॉपिंग करके जल्दी फारिग हो जाता है. तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है हमारे लिए. और मेन चीज़ उनको सब ज़्यादातर नॉलेज है ही. अभी तो मोबाइल वाइज देखने जाएंगे तो कैमरा, प्रोसेसर, चार्जिंग वार्जिंग सब उनको आइडिया है ही, नॉलेज है ही. अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है तो उस हिसाब से हमारे लिए बेटर चीज़ हो गई है. मेन पर्पस होता है जो हमारे को मोबाइल सेल करना है सर, तो जो चीज़ है वो प्राइस है, फाइनेंस स्कीम है, वो सब चीज़ें बस
तो बाकी की चीजों पर ज्यादा टाइम दे पाते हो। हाँ उसमें कस्टमर, आज ऑनलाइन का जमाना है, सबके पास एंड्रॉइड फोन है या सब फोन यूज करते हैं, इंटरनेट फ्री हो गया, तो कस्टमर ज्यादातर डिटेल रिसर्च करके आ रहा है। सेकेंडरी हम कुछ ऐसा बताते हैं जो कस्टमर ने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद भी उसको पता नहीं है, वो नॉलेज हमारे पास होता है और वही हमें कंपनी सिखाती है और वो हम कस्टमर को ट्रस्ट ले जाता है, तब वो ट्रस्ट करके हम हमारे साथ हमारे पास से मोबाइल ले जाता है। तो वो चीज़ हमें उसको बतानी पड़ेगी कि ये जो 60 चीज़ to 80% कस्टमर ऐसे आते हैं जो ज़्यादातर फीचर्स देख के आते हैं और कंपनी ने कुछ ऐसा हाईलाइट फीचर्स होते हैं जो हमारे को बताना पड़ता है, वो हाईलाइट फीचर से कस्टमर की क्लोज डील जल्दी हो जाती है हमारे साथ। एक कोई और इस चीज़ टाइप मुझे- का फाइनेंस का स्कीम है और फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह की स्कीम है, उससे कस्टमर जल्दी क्लोज हो जाता है। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अभी सोशल मीडिया से बहुत बेनिफिट मिला हम लोगों को। सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे कि रील्स आती है इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, या अपने कोई घर में टीवी वगैरह देखते हैं उसमें ऐड आती है अपनी कंपनी की, तो अपने को खुद को प्राउड फील होता है कि नहीं यार, ये इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ और इस कंपनी की ऐड आ रही है, तो उसमें शेयर एकदम ईजी हो जाता है हमारा और तो कस्टमर का ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो आपने जो रील की बात करी, आप भी बनाते होंगे रील तो? 100%। तो और वो तो पहले तो नहीं बना रहे होंगे, अब बनाने लग गया हो, तो कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि सोशल मीडिया तो अभी क्या कोविड के बाद ज्यादा बढ़ गया है ना? तो और उसके पहले तो कोई कैमरा को हाथ ही नहीं लगाता था, और अब हर कोई इंसान को, आपको सबको वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे को बताओ ना। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। अच्छा, मतलब कि आज जो सोशल मीडिया पे ओनली फॉर अपने रिलेटिव से या कोई जान पहचान वाला है, ओनली फॉर वही रील्स देखते थे, बट जब से हम ओप्पो में जुड़े, ओप्पो के रिगार्डिंग कोई भी रील्स अपलोड करते हैं तो साथ में रिलेटिव के साथ में पूरा ओप्पो दिखता है। पूरा ओप्पो के इंडिया फैमिली में जितने भी लोग जुड़े हुए, जितने भी मोबाइल परचेस किए हो, वो सब लोग देखते हैं अपनी रील्स। तो उस हिसाब से एक तरह से हम लोग को फील होता है कि हम खुद कुछ है। वो चीज अभी सोशल मीडिया में ओप्पो ने सबसे बड़ी हमारे को तक दी है कि तुम खुद आगे इमेज बनाई है कंपनी ने, हम लोगों को एक मौका दिया है कि अब हमारे साथ जुड़े हो, हम कंपनी में इतने साल से हम काम कर रहे हैं, कंपनी ने हमें भी एक वैल्यू दी है कि नहीं, आपका भी एक स्टेज है, आपका भी एक पावर है। हम रील बना रहे हैं तो कस्टमर कभी रील देख के भी होता है, अच्छा आपने ये मॉडल का रील बनाया था, ये मॉडल का डीलर मुझे बता, तो वो सेल करना अच्छा, तो easy रहता है। फैन जैसा फील होता होगा ना, मैंने आपका वीडियो देखा था, है ना? हमें लगता है हम भी कुछ एक्टर है या वो मुझे लगता है अच्छा है कस्टमर, अच्छा आपने ये रील बनाई थी, मुझे वो मॉडल लेना है, बस बात, और कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी Social media इंक्वायरी का आती power है। लगी खबर, जैसे अपने को स्टेटस डाला, जैसे हमारे डीलर को या तो फिर हमने ग्रुप एक ब्रॉडकास्ट बनाया कस्टमर होगा, उसको हम जैसे मैसेज स्प्रेड करते हैं ना, तुरंत इंक्वायरी आती है कि आपने ये मैसेज करा सर, ये नया मॉडल आने वाला है, इसकी प्राइस क्या है, इसका फीचर्स क्या है, तो सब जानकारी ऑटोमेटिकली मिल जाती है, वो हमारी एक जनरेट हो जाती है इंक्वायरी, और Business benefit कस्टमर बहुत एकदम जल्दी क्लोज भी हो जाता है। एडवांटेज मिलता है रील्स बनाने का। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर तो बहुत है, आपको पता ही है, राइट? हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, और उनको सबको एक ही सबसे ज्यादा डिप्रेशन है कि अरे यार आज क्या वीडियो बनाऊं, आज क्या करूं। आप लोग जो कि कंटेंट क्रिएट तो करना भी नहीं चाहते थे, आप तो अलग ही चीज कर रहे हो, सेल्स में से आपको कंटेंट, तो आपको ये नहीं आता कि अरे यार अब आज क्या बनाओ, अब नहीं सूझ रहा कुछ, आज तो दिमाग ही नहीं चल रहा, नहीं बनाना आज वीडियो, तो ऐसा कुछ कभी फील करते हो आप? कभी एक नॉर्मल कोई टॉपिक पे ऊपर एक फनी रील भी बना दिया, सबको थोड़ा प्रोफेशनल रील भी नहीं पसंद है, कुछ फनी मूवमेंट भी उसमें अटैच कर देते हैं, तो कस्टमर को नहीं देखनी है कोई भी लोगों को, तो वो देखता है फनी मूवमेंट के लिए भी रील देखता है, और एक टॉपिक भी उसको हिट कर देता है, तो भी वो देखते हैं वो कौन से पॉइंट पे, कौन से मॉडल पे रील बनी, वो भी हिट हो जाती है। तो आपका किसी का ऐसा कोई वीडियो कि जो बहुत ज्यादा ऐसा या तो चल गया हो या बहुत ज्यादा अच्छा प्रतिसाद मिला हो, ऐसा कुछ आपको याद हो कोई किस्सा? हाँ, मेरा हुआ था, ओप्पो का एक मॉडल हुआ था F27 Pro Plus। वो मोबाइल सबसे पहला अनब्रेकेबल मोबाइल था, जिसे गिराते थे कुछ होता नहीं था। वो मोबाइल पे मैंने रील्स बनाया था सर। मेरे को याद है कि मेरे पास 5 पीस का स्टॉक आता था मॉर्निंग में, मैं आफ्टरनून तक तो सेल करके फ्री हो जाता था। और ये सब आपके वीडियो के कारण? हाँ, ये सिर्फ ओनली फॉर वीडियो के लिए। और क्या बनाया था आपने वीडियो में ऐसा? मतलब कि वीडियो में सब फीचर फंक्शन के साथ में मैंने बताया था कि ओप्पो का जो मॉडल है वो F27 Pro Plus, वो पूरा अनब्रेकेबल के साथ में वाटर प्रूफ है। आज तक सब कंपनी ने बनाया नहीं, मार्केट है, सीधी सी बात है, बट इसमें जो चीज़ थी पूरी आउटस्टैंडिंग थी, बहुत ही बढ़िया मॉडल था। उसकी वजह से आज अभी भी ओप्पो जो मार्केट में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, उसका रीज़न वही है कि ओप्पो चलने में सब चीज़ों में सबसे अभी आगे है। इसमें सर मैं भी एक क्वालिटी करूँगा। देती है ब्रांड। हाँ,
यही सेम रील्स मैंने भी बनाई थी स्टोर अच्छा। की आईडी से। अच्छा। उसमें लाइव 27 डेमोन्स्ट्रेशन दिया Pro था। की ही? हाँ, ये 27 Pro Plus प्रो प्लस। लाइव कार चलाई थी और नीचे अच्छा। फोन रखा था। वो ड्यूरेबिलिटी चेक कराई कस्टमर को, बहुत सेटिस्फाई हुआ। और सेम फोन को पानी के अंदर भी डाला। पानी तो चलो चल, चाय में भी डाल दिया हमने तो वो भी कम्प्लीटली एकदम ब्रांड लेवल का, एकदम जो अपने बोलने जाओ एक ट्रस्ट लेवल हाई लेवल का। उससे बहुत कस्टमर जुड़े ओप्पो के साथ और हमको खुद सेल करने में बहुत मजा आई। स्टॉक हम कंपनी से मांगते थे कि हमको 10 पीस चाहिए, तो हमने इनको 3 देती थी और 3 तो एक गड्ढे में सोल्ड आउट। अच्छा एडवांस बुकिंग होता एडवांस बुकिंग होता था सर। कस्टमर पेमेंट देके जाता था, ना कोई डिस्काउंट चाहिए, बस फोन चाहिए। और ये आपको लगता है सोशल मीडिया का कारण हुआ? सोशल मीडिया के पावर जी सर, उसमें ना कलर ऑप्शन के कुछ नहीं, सिर्फ मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट के रिकॉर्ड ही आते थे। कस्टमर ऐसा समझो कि पूरे दिन में सेल स्टोर आउटलेट 20 पीस था, तो 20 पीस में से 15 पीस इसके थे। ओह ज्यादा बेनिफिट। बहुत ही सर आउटस्टैंडिंग हम लोग ने जो सेल किया होगा, तो वो F27 Pro Plus में आपको कुछ बेनिफिट वो मिलता कि एडवांस बुकिंग का भी बेनिफिट मिलता, प्लस कस्टमर को वेटिंग करवाना पड़ता था हमारा कि भाई रुक जाओ, थोड़ा वेट करो। कलर ऑप्शन कुछ नहीं, बस लेना है तो यही प्रोडक्ट लेना, आप कुछ नहीं देना। रील्स बनाने के इतने सारे व्यूज भी मिले थे और बेनिफिट भी मिले उससे हमारा। इतना बढ़िया आपको सोशल मीडिया पे रिस्पांस मिलता है, आपको ऑन ग्राउंड भी इतना बढ़िया रिस्पांस मिलता है, लेकिन अगर आज इतने सालों बाद 10 साल 9 साल 5 साल आपने बिताए हैं, सबसे सेटिस्फाइंग क्या लगता है? सबसे ज़्यादा तृप्ति होती है कि नहीं यार ये चीज़ के कारण मतलब मुझे ओप्पो पसंद है यार, ये मैं नहीं जा पा रहा हूँ इससे दूर कहीं। सर इसमें इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद लास्ट ईयर हमें कंपनी की तरफ से एक हमारी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री विजिट मिली थी। वैसे गिफ्ट्स ट्रिप वो सब तो मिलती है, लेकिन एक फैक्ट्री विजिट मिली थी। तो फैक्ट्री विजिट में हमने पहली बार देखा लाइफ में कि फ़ोन कैसे बनता है, एक एक मॉड्यूल उसका, एक एक पार्ट्स कैसे बनता है, पूरी मशीनरी में हर एक चीज़ हमने लाइव देखी। तो एक ऐसा फील हुआ कि ये स्टेप हमने कभी सोचा भी नहीं था, तो कंपनी आज हमें वहाँ पे लेके गई। वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। और सबके लिए कंपनी बेनिफिट ऐसा कोई ना कहीं देती है, तो मन नहीं होता कि छोड़ो कंपनी। 100% सर, जैसे कि सागर भाई ने बताया, सेम चीज़ सर। ओप्पो अभी मतलब कि सोचो कि आसमान पे छू रहा है। बिल्कुल। मतलब हम जो ग्राउंड फ्लोर पर से लेके, मतलब मेरे को आइडिया है कि मैं आज जो हूँ ना सर, व्हीकल पे आता हूँ, मेरे को मालूम है मैं ओप्पो में काम करूँगा तो मैं फ्लाइट में भी बैठूंगा। सही बात है। इतना कॉन्फिडेंट है सर। सही बात है। Truly, 100%। मैं इतने सालों से ओप्पो से जुड़ा हूँ। पिछले कई सालों से मैं एक्चुअली खुद का मकान नहीं था, पर मैंने ओप्पो में रहते हुए मैंने मेरा खुद का मकान भी लिया मैंने। पर आज खुद के घर में मैं रह रही हूँ। और इससे पहले मैं जो जॉब करता था वहाँ पर मैं एज अ ट्रैवल में बस में करता था। आज खुद की गाड़ी है और खुद का घर भी है, काफ़ी टाइम से। मेरी ओप्पो में 10 साल की जर्नी है। सबसे ज़्यादा आपकी सबसे मेरे ख्याल बेस्ट से। एक्सपीरियंस है मेरा 2018 में मैं कंपनी की तरफ से पैन इंडिया गोवा की ट्रिप लगी थी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ओएसी डायरेक्ट सीईओ से मिल सकता है कभी? और इसलिए आपको सीईओ तो वैसे बुलाते ही है, लेकिन आप सीईओ सीधे सीईओ से डायरेक्ट भी सीईओ मिले। से मिला था मैं 2018 में गोवा में। क्या ये बात। सबसे बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का। और वो आपको ऐसा लगता है कि एकदम ऐसा सेटिस्फेक्शन। फीलिंग आता है कि मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा फील होता है कि मैं खुद ऑनर हूँ इस कंपनी में। आप इतना टाइम से ओप्पो के साथ काम कर रहे हो, तो ऐसा कोई कस्टमर का एक्सपीरियंस जो आपको ताउम्र याद रहेगा? हाँ, एक कस्टमर था सर, दिवाली का टाइम था, फुल्ली क्राउड स्टोर में था। उनको आइडिया ही नहीं कि ओप्पो ब्रांड क्या है। अच्छा। हाँ, अब उसमें अपने बात करते हैं तो वो कस्टमर को लेना था प्रीमियम मोबाइल, पर उसको मालूम ही नहीं कि मैं ये ब्रांड में किस तरह से मतलब पे करूँ, पेमेंट किस तरह से करूँ। अब वो मोबाइल परचेस तो करना चाहते थे, बट कैमरा रिकॉर्डिंग चाहिए। बट वो भी फर्स्ट टाइम कैमरा के लिए वो जाने वाले थे ओप्पो ब्रांड में। अब सर वो कस्टमर आए, मोबाइल मैंने ओप्पो का रेनो 12 प्रो दिया। वो कस्टमर ने यूज़ किया, उसको नहीं मज़ा आया, उन्होंने रिव्यू डाला। फिर ओप्पो इंडिया से मुझे कॉल आया कि आपने ये कस्टमर को सेल किया है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, कस्टमर से वापस आप बात करिए। एक्चुअली में वो कस्टमर को आइडिया नहीं था कि कैमरा का किस एंगल से किस तरह से फ़ोटो क्लिक करना है। ठीक है, अब बात हुई, सीधी सी बात है, अब मेरे पे आ गई पूरी बात कि तुमने इस तरह से हुआ। तो कस्टमर आया स्टोर पे, वापस सब बात हुई। अब वो कस्टमर को मैंने प्रॉपर कैमरा एंगल सिखाया कि इस तरह से क्लिक करना है, इस तरह से click- अच्छा, फोटोग्राफी कैसे करना है हाँ, आपने ये भी सिखाया? हमने बताया।
नहीं सर वो कस्टमर बहुत ही लॉयल, बहुत ही कस्टमर, मेरे लिए सबसे लाइफ का सबसे बेस्ट कस्टमर था। अच्छा मेरे को भी एक चीज़ सीखने मिली कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं, ठीक है। तो वो कस्टमर को मैंने मोबाइल दिया। आज की तारीख में सर, आज की डेट में वो कस्टमर तो ओप्पो ले रहा है, इवन उनकी फैमिली के साथ में उनके कलीग को भी ओप्पो ही दिला रहा है सर। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ये रहा सर मेरा। क्या बात है। जी सर। मेरे एक्सपीरियंस की बात करो तो रिसेंटली लास्ट 1 महीने पहले ही मैंने अंकल मेरे पास लास्ट फ्यू ईयर्स से मेरे पास से फ़ोन लेके जा रहे हैं। पर हुआ ऐसा कि अब की बार उनको सन को फ़ोन लेना था। अब अभी यंग जनरेशन के हिसाब से उनको लेना था आईफोन। अब मेरे पास जब हुआ है तो मैंने उनको मेरा ओप्पो का एक 15 प्रो मिनी का फ़ोन दिखाया। जब उसके इतने सारे फीचर फंक्शन जो बताए, AI टेक्नोलॉजी बताई ना, लिटरली उनको आईफोन छोड़ के उनको ओप्पो का फ़ोन लेके जाना पड़ा। और काफ़ी टाइम से वो मेरे पास से ओप्पो के ही फ़ोन लेके जाते। मेरा सर रिसेंटली एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है। मेरे बाजू में एक वीवो वाला बंदा है, उसका एक प्रीमियम कस्टमर है। कभी भी 20 सीरीज आती है ना तो सबसे पहले वो लेने आता है। तो इस बार क्या हुआ, वो आया एक्चुअली फ़ोन चेक कराने वीवो का, उसको कुछ हीटिंग का कुछ ऐसा कुछ इश्यू आ रहा होगा नॉर्मल। तो उस दिन वो वीवो वाले ने उसको हैंडल नहीं करा, तो उसको मैंने हैंडल करा, उसको समझाया कि इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला एक काम करते भाई, आज तक मैंने कभी ओप्पो का फ़ोन नहीं लिया, आज तो मुझे ओप्पो का फ़ोन दिखा। तो उसको सर मानोगे नहीं आप, V70 उसने इलाइट रिटर्न देके ओप्पो का Find X9 लेके गया। अच्छा। मेरे लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। क्या बात है। सब स्टोर वाले मजाक उड़ा रहे थे, बोले क्या कभी ओप्पो लेगा बोले। हाँ और उसको मैंने एकदम डीपली समझाया, एक एक स्पेयर पार्ट, एक एक फीचर समझाया, और रैंडमली वो कैश में लेके गया। कोई अच्छा। क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई फाइनेंस नहीं, डायरेक्ट। वो भी फर्स्ट टाइम ओप्पो का 80,000 का लेना बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। तो ये तो हुई कि आपको सेटिस्फाई कस्टमर ने कैसे किया, सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस। वहीं में अगर कोई ओप्पो के मॉडल की बात करूँ इतने सालों में, आपको कौन सा सबसे ज़्यादा ऐसा भाई पसंद आया और आज भी याद आता है कि भाई वो फ़ोन आज भी याद आता है जो बहुत बढ़िया आपने कुछ सेल किया हो, तो आपसे पूछना चाहूँगा। ओप्पो का F1S, अच्छा। उसमें बहुत तगड़ा इंसेंटिव था पहला सर। ही वो तो हाँ, बहुत सेल्फी एक्सपर्ट, मजा आती है सर बैठने में। उस लेवल की सेल्फी उस टाइम पे, आई थिंक 2017-16 की बात कर रहा हूँ, 17 में मैं ओप्पो में आया था। उस टाइम पे सेल्फी चैंपियन था, मतलब सेल्फी कैमरा એટલે ओप्पो कैमरा। अच्छा। कैमरे के लिए ओनली फॉर ओप्पो, दूसरा कुछ नहीं। जैसे सर भाई ने बताया सेम चीज़, मैं जब स्टार्ट हुआ ओप्पो में, मतलब मेरी जॉब लगी तब, ओप्पो का F21 था सबसे बेस्ट मॉडल, क्योंकि वो रेंज में AMOLED के डिस्प्ले के साथ में माइक्रो कैमरा देता था सर, जो डीपली जो चीज़ माइक्रो कैमरा, हाँ सबसे बेस्ट सर मॉडल गिने जाएगा तो अभी के तब से सबसे लेदर फिनिशिंग ये वो, मतलब सबसे बेस्ट बढ़िया मॉडल हो तो F21 भी गिना जा सकता है सर। क्या आपके लिए। मेरे एक्सपीरियंस बात तो जो अभी तक की इतने 9 साल में मैंने जो भी मॉडल देखे, अभी तक की बेस्ट सीरीज थी मेरी रेनो 14 सीरीज, जो रिसेंटली मैं खुद भी अभी वो यूज़ कर रहा हूँ। उसका जो अपीयरेंस था, कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी, कस्टमर उससे सेटिस्फाई होता था, और लिटरली मेरे पास स्टॉक नहीं था उसको बेचने के लिए। सर आपने मेरे साथ ये सर एक वाकई अच्छा सा हुआ था। एक दिल्ली के जाने माने गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो और उनकी मिसेस के लिए फ़ोन लेना था। तब हमारा लॉन्च हुआ था रेनो 10 प्रो, पूरा सीरीज था उसमें, रेनो 10 प्रो प्लस था। सर का बजट था 50-60 अराउंड, और उनकी मिसेस के लिए उन्होंने लिया F25 प्रो। तो वो उसमें उनको कैमरा एक बेस्ट चाहिए था, ब्रांड डजंट मैटर, आईफोन या सैमसंग वॉट एवर ब्रांड, लेकिन कैमरे के लिए मैंने उसको प्रोस्पेक्ट किया था 10 प्रो प्लस। तो प्राइस नहीं देखी, कैमरा डेमो दिखाया, कैमरा दिखाया, दैट्स डन, और उनकी मिसेस के लिए वो F25 प्रो ले गए। सो बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए कैमरा, राइट। इसके अलावा भी 10 प्रो प्लस जब लॉन्च हुआ था ना, एक कस्टमर को जस्ट मैंने फ़ोन पे व्हाट्सअप की PPT भेजी थी, उससे डन हो गया था। और फर्स्ट डे फर्स्ट सेल में मैंने कस्टमर घर पे जाके डिलीवरी करी, डेटा ट्रांसफ़र करा, ओनली ऑन 55,000 का कस्टमर फ़ोन केस में ले गया था मेरे पास से, घर पे जाके डिलीवरी दी थी मैंने। कस्टमर भी इतना सेटिस्फाई था सर्विस के लिए। आज भी फ़ोन मेरे पास से लेना हो तो कॉल करता है, सबीर भाई कौन सा फ़ोन आया, ये फ़ोन हुआ है, लॉन्च हुआ है, उसको डिटेल भेजना, फीचर फंक्शन भेजना, कस्टमर ओके हो जाता है। आपने फोन घर पे डिलीवर किया और आपने वो सर्विस उस तरीके से उस तरह की दी। सर्विस उससे दी। मुझे एक प्रश्न ये होता है कि
कोई इंसान क्या नहीं समझ पाता है आपके पर्सपेक्टिव से, मतलब किस हद तक आपको जाना पड़ता है या क्या आप करते हो जो शायद आम आदमी नहीं देख पाता या नहीं समझ पाता कि आपकी सर हम तो बोल के निकल जाएंगे दुकान से, अरे बोले बेकार है तुमको नहीं आता, बट आपका क्या ऐसा एक एस्पेक्ट है कि जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई कितनी मेहनत जाती है, क्या किस हद तक आप जाते हैं, जैसे आप घर तक डिलीवर करने आज जा के रहे हैं। टाइम में फोन बेचना और फीचर फंक्शन समझाना कस्टमर को इजी टू यूज है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कस्टमर ऑलरेडी सब कुछ देख लेता है, फीचर फंक्शन से लेके कैमरा से लेके प्रोसेस लेके सब कुछ। वो तो कुछ बचा पर नहीं आफ्टर हाँ। सेल्स सर्विस जो होती है वो कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट है। हाँ। अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करना हो तो आफ्टर सेल्स सर्विस और बेटर है। उसको दिन पे दिन पूछना, फोन बेच सेल होने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद पूछना, सर आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अच्छा कुछ तकलीफ तो नहीं आ रही, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पूछना फोन के रिगार्डिंग, तो कस्टमर को एक माइंड सेट होता है और कस्टमर अपने से कनेक्ट भी रहता है। इसमें सर मैं एक ऐड करना चाहूँगा, मेरा एक रैंडम एक ये बोलूँ ना प्रीमियम कस्टमर ओप्पो लवर, अच्छा उसकी एक इंक्वायरी थी सैमसंग की S25 की, तो उसको मैंने इंक्वायरी को जनरेट करा, उसको S25 ही लेना था, तो उसको मैंने हर चीज़ S25 की दिखाई, उसकी प्राइस एक्यूरेट दिखाई, उसके फ्यूचर एक्यूरेट दिखाई, कुछ छुपाया नहीं। लास्ट में वो क्या मुझे बोलता है खबर है, नहीं भाई मुझे ओप्पो दे, क्योंकि तुमने मुझे झूठ नहीं बोला ना, तो मुझे गलत बोला। तो वो बंदा रेनो 15 प्रो मिनी लेके गया, क्योंकि उसको जवाब दिया मैंने, उसको स्टोर पे बुलाया, उसको फीचर्स समझाया, सैमसंग का भी नॉलेज होना जरूरी है दूसरी ब्रांड का, उसको जब दोनों में डिफरेंस बताया ना तब जाके वो एग्री हुआ कि नहीं मुझे ओप्पो बेस्ट है। और ये ईमानदारी रखना भी जरूरी हो जाता है, बहुत मतलब जरूरी लोग है। नहीं समझते इस चीज को, लोगों को लगता है कि अरे भाई तू अपना बेच रहा है या तू क्या कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा है जो लोग नहीं देख पा रहे हैं आपके काम में? जो सर भाई ने सब लोग ने बताया, जो हम लोग काम करता है ना सर, स्टोर पे 8 से 10 कलाक खड़े रहते हैं सर, हाँ कंटिन्यू वो भी। एक कस्टमर आया, क्लोज हुआ, डील क्लोज हुई, मोबाइल लेके गया, सेकंड कस्टमर आया, कंटिन्यू 10 कलाक के आसपास में तो हम पूरा दिन खड़ा ही रहते हैं सर, खड़े ही रहते हैं। और कोई भी त्योहार फेस्टिवल तो सर भूल ही जाओ ना, फेस्टिवल हमारे लिए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, फेस्टिवल यानी स्टोर, बस स्टोर का सेल हमारा सेल, कंपनी का ग्रोथ हमारा ग्रोथ, और वही आप कस्टमर के साथ स्टोर पे कस्टमर। हाँ बस सब एक्चुअली में सर हम तो फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं वो कस्टमर के साथ करें, क्योंकि कस्टमर ही हमारी फैमिली है। क्या बात है। और आप तो शायद कहीं और से आए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ सर, थोड़ा उसमें मतलब मैं जो वहाँ से आ रहा हूँ वो दीव है, छोटा सा उसके पास में विलेज है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। अभी मैं पहले जॉब करता था पूरी होटल लाइन में कैशियर, वो भी वाइट कॉलर जॉब थी, हाँ, बट मेरे को सेल्स लाइन में इंटरेस्ट था। मेरे को मालूम था कि मैं सेल्स लाइन का बंदा हूँ, मेरे को आगे बढ़ना है। तो मैं वहाँ से, मेरी पूरी फैमिली अभी वहाँ पे है, मैं अकेला यहाँ पे पीजी में रहता हूँ सर। अच्छा जी सर, मैं पीजी में रहता हूँ और मैं ओप्पो में 4 साल से कंटिन्यू, आज तक कभी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मेरा अकाउंट खाली हो। वो चीज़ मेरे को ओप्पो ने दी है। जी सर। क्या बात है सर, आप भी कुछ और करते थे पहले? 10 साल हो गए आपको ओप्पो में। उसके पहले पहले मैं रैंडमली नॉर्मली कांच वगैरह का काम करता था, जो कांच बनाना पड़ता था। जो अच्छा। 144 नंग बनाते हो आप, तो आपको 10 रुपए मिलते थे। मतलब उस टाइम मतलब मंथली 2016 की बात कर रहा हूँ, महीने के भी कुछ 1500-2000 रुपये कमाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना कमाता हूँ जितना शायद ही कोई कंपनी मुझे अफोर्ड कर पाएगी। कि ये ओप्पो है और तो ही यूँ समझो ओप्पो है तो ही हो सकता है पॉसिबल। मैंने खुद अपने दम पे खुद की गाड़ी ली, वो भी कैश में। अच्छा हाँ वो तो अच्छे लोग नहीं ले पाते यार, सबके EMI चल रहा है। सबसे मेन चीज हमारे में एक होता है आज और उम्रा पे जाने का, तो इंशाल्लाह मैं उम्रा पे भी जाकर इस ओप्पो के बदौलत ही, क्योंकि इतना मैं कैपेबल हूँ कि अभी चाहूँ तो ऐसी 2 गाड़ी और ले सकता हूँ, वो भी कैश में। क्या बात तो है। ये बहुत जैसे कि अच्छा ये सपोर्ट मिला है। भाई ने बताया, मैंने एक चीज़ पहले मिस कर दी आपको बताने की। मैंने यहाँ रिसेंटली अहमदाबाद में एक फ्लैट लिया है सर। क्या बात है, पीजी से निकल के अपने घर में पहुंच जाएगा ना। पार्टी बाकी है इसकी। पार्टी तो फिर अब मैं भी आएगी ना पार्टी। पूरी मैं तो अपनी जो ओप्पो की पूरी फैमिली है सबको इनवाइट करूंगा सर। क्या बात है। जी सर, क्योंकि मेरे हिसाब से आज तक पापा के ऊपर ही सब है। अब ओप्पो ने मेरे को खुद को खड़ा किया है, तो जिसने मेरे को खड़ा किया, जिसने मेरे को आगे, वो इसको तो बुलाऊंगा ही ना सर, सीधी सी बात है। सब पूरा ओप्पो फैमिली, ओप्पो परिवार पूरा है सर अपना। तो उनकी बात से रिलेट करता हूँ मैं, क्योंकि आज के टाइम में अब खुद का घर होना अभी फिलहाल की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट करता है।
Yes. जब मैं भी रेंट वाले मकान में रहता था तो मेरे को भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्टैंड पावर चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ घर का कुछ कर सकूं मैं। तो फैमिली वालों का सपोर्ट था और ओप्पो का सपोर्ट के साथ साथ में खुद का मकान भी लिया और वेल सेटल्ड है। क्या अच्छा बात लगता है सब चीज़। ग्रोथ हमेशा सर हमारा हुआ ही है ऑलवेज, और हमने भी कंपनी में एफर्ट इतने डाले, 10-12 घंटे काम भी किया है और कस्टमर को भी कन्विंस भी करते हैं, साथ में आफ्टर सेल्स सर्विस भी मायने रखती है तो वो भी देते हैं सर तो इसलिए हमारा भी विकास, कंपनी का भी विकास, सबका ग्रोथ। क्या बात है। और जाते जाते अभी मुझे आपसे एक सवाल ये करना है कि अब जो भी लोग देख रहे हैं जो ओप्पो को, शायद अभी आपने कहा कहीं ऐसे कस्टमर जो ओप्पो कभी यूज ही नहीं किया, हाँ, यस, तो जो इंसान आपको देख रहा है जिसने ओप्पो आज तक यूज नहीं किया है, आप उसको क्या बताएंगे कि ओप्पो एक लाइन में क्या है और उसे क्यों यूज करना चाहिए? टोटली बिल्ड अप क्वालिटी और ग्रोइंग ब्रांड। आप मैं बताऊंगा सर कि ओप्पो तुम्हारी कंपनी है, खुद की यूज़ पहले यूज़ करो। यस, ओप्पो कंपनी उनके लिए है जो हमारे पे ट्रस्ट करे, ओप्पो फैमिली पूरी उनके लिए ही है। ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको फीचर वाइज, अपीयरेंस वाइज, कैमरा वाइज जानना हो तो एक बार दूसरी तरफ देख के आओ, फिर मेरे पास आओ, तो लगातार आप ओप्पो ही लेके जाओगे। मैं कहना चाहूँगा ओप्पो जो कंपनी है ना टेक्नोलॉजी पे बिलीव करती है, जैसे कि एआई मार्केट में लाने वाला ओप्पो फर्स्ट। आप इंडस्ट्री में चेक कर लीजिए, एआई लाने वाला ओप्पो है, टेक्नोलॉजी लाने वाला ओप्पो है, हर चीज लाने वाला ओप्पो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है। वाटरप्रूफ भी लाने वाला ओप्पो ही है सर, तो 110%। इसमें टेक्नोलॉजी आपको भर भर के मिलेगी, आपका जो पैसा है वो फुल्ली आपको ऐसा लगेगा यूजेबल है। पर अभी ये जो XN अल्ट्रा है वो तो लोग कह रहे हैं बहुत महंगा है, तो आप लोगों को ये क्या समझाओगे कि भाई ये महंगा है, तो आप एक बार ये समझो, ये देखो, तो आप क्या बोलना मैं चाहोगे? सर X9 अल्ट्रा की बात करता हूँ। X9 अल्ट्रा को अपने कंपेयर कर सकते हैं। बाय द वे ये पॉडकास्ट XN अल्ट्रा पे शूट कर रहे हैं अपन और XN सीरीज पे शूट कर रहे हैं अपन पूरा पॉडकास्ट, तो ये भी है। हेजलब्लेड का जो कैमरा यूज करा हुआ है उस खाली अभी पर सर्च करना, हेजलब्लेड का जो 2D कैमरा आता है उसकी कॉस्ट 8.5 लाख से लेके 9.5 लाख तक के है। Yes. वो चीज ओप्पो 1,70,000 में दे रहा है प्लस 10% का डिस्काउंट। अब इससे बेहतर क्या चाहिए आपको? अपीयरेंस वाइज भी प्लस जो 2D जो कैमरा दिया उसके हिसाब से कंपनी ने अपीयरेंस भी बनाया उसका, उसके क्लिक करने की प्लस जूम क्वालिटी सारी चीज कंपनी ने एक्यूरेट जो डिट्टो जो 2D कैमरा है हेजलब्लेड का उसके जैसा दिखता हुआ फोन बना दिया है। इससे बेटर और क्या चाहिए? और इसमें एक चीज और मैं करूँगा ऐड, उसमें सर एक बार पोर्ट्रेट में आप जाके जो 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है उसमें आप 10x पे जूम करके फोटो मारना, ऑप्टिकल जूम आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि एज अ DSLR फोटो क्लिक है। जी सर। साथ में सर एआई के फीचर्स भी ऐसे हैं जैसे एआई माइंड स्पेस है, जैसे हम ये जेमिनाई या चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी यूज़ करते हैं तो वो तीनों का एक कॉम्बिंग बनाया, कंपनी ने खुद अपनी एआई बनाई है, तो वो भी एआई में भी वो चीज़ कोई ब्रांड में, अदर ब्रांड में नहीं मिलती। तो एक बार एक्सपीरियंस करें। और दूसरा कि प्रीमियम जो लेवल के फ़ोन होते हैं 50-60 हज़ार से ऊपर, सर उसमें 5,000 से ऊपर बैटरी नहीं आती, ये 7,050 mAh का बैटरी देता है। बैटरी के लिए भी हाई लेवल होता है, कुछ भी यूज़ करो 1.5 से 2 दिन बैटरी भी अच्छी चलती है। साथ में IP69 सपोर्टेड है, सो नो वरी। 100 वोल्ट का चार्जर है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है रिवर्स चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, तो सब कुछ दिया हुआ है। फंक्शन इतने हैं सर, एक बार आप जानोगे तो 2-3 घंटा एक फ़ोन समझाने में निकल जाता है। अच्छा, फ़ोन में इतने सारे फंक्शंस है, सो बेटर देन बेस्ट है। इसको एक बार तुम हैंड फील करो, Yes. जस्ट हैंड फील करो, आपको प्रीमियम फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा आपके हाथ में हेजलब्लेड का कैमरा है, पूरा के पूरा कैमरा सेटअप है। उसके जो 200 मेगापिक्सल के 2 कैमरा दिए हुए, बाकी तक के अभी सब कंपनी में 3 कैमरे 4 कैमरे, इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम 5 कैमरे दिए हुए उस फोन में। क्या बात है। इंडस्ट्रीज में कैमरा हेजलब्लेड से ऊपर आज की डेट में कोई नहीं है। टू बी चैलेंज, ओपन चैलेंज। यस, इस प्राइस सेगमेंट में तो 200 मेगापिक्सल प्लस 500 प्लस मेगापिक्सल के कैमरे हो जाते हैं, वो भी 5 कैमरे। इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी ब्रांड के कैमरा आते ही नहीं। और आखिरी पड़ाव में जाते जाते ये भी मुझे पूछना था आपसे कि हर एक इंसान का कुछ ना कुछ जीवन का एक वो सिद्धांत होता है, गुरु मंत्र होता है जिसके ऊपर वो चलता है। तो और आपका तो ऐसा है कि भाई रोज नए लोगों से मिलना, जात भात के लोगों से मिलना, उसमें अपने आप का एक सिद्धांत अगर क्लियर ना हो तो आदमी यहाँ वहाँ निकल जाता है। तो आपके हिसाब से वो एक सिद्धांत आप किस पे चलते हो जिसके कारण इतने साल टिके हो? मेरा सिद्धांत ये है कि एवरी कस्टमर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कोई भी कस्टमर दुकान में आ रहा है, भले वो टाइम पास के लिए आ रहा है या फिर एसेसरीज लेने आ रहा है, तो उसको आप अप्रोच करो, आपकी ब्रांड के बारे में बताओ, प्रोडक्ट मार्केट के बारे में बताओ, या तो हैंड फील करो सबसे बेस्ट।
लाइट ऑन होते ही अपने स्टोर पे कस्टमर आया, वेलकम करो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग तो गुड इवनिंग करिए, और हाथ में हैंड फील कराओ प्रोडक्ट को। उसको क्या ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं घुसा, भले कुछ लेना नहीं था, कस्टमर ने मुझे जो इंसान था उसने जवाब दिया, एक रिस्पेक्ट ली थी। पानी हो तो पानी पिलाइए, चाय हो तो चाय पिलाइए, ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोई प्रोडक्ट लेके जाता है कस्टमर तो उसको नंबर लेके सेव करो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में। कोई भी नई प्रोडक्ट आती है उसको ब्रॉडकास्ट करो। मेरा एक ही मकसद है, एवरी मॉर्निंग में एक ही चीज़ करता हूँ, ग्रुप में मैसेज मैंने बना के रखे ब्रॉडकास्ट, उसमें कोई भी प्रोडक्ट पीपीडी आती है, मेरा जो टीएल बीडीएम सेडम मुझे शेयर करते हैं उसको कस्टमर के थ्रू फॉरवर्ड करता हूँ। उससे मेरी एक इंक्वायरी भी जनरेट होती है और मेरा सेल्स इंक्रीज होता है। क्या बात है। मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरा सिद्धांत ऐसा है कि मैं अगर मॉर्निंग में अगर स्टोर पर आ रहा हूँ ना, तो मुझे एक ही नियम है कि मेरा जब तक के दोपहर तक के मेरा एक पीस सेल नहीं होगा ना, वहाँ तक के मैं लंच नहीं करता हूँ। अच्छा, मेरा नियम है पहले से, जब से मैं 9 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जब से मेरा एक ओपनिंग ना हो, एक पीस का सेल ना हो, वहाँ तक के मैं लंच नहीं करूँगा मैं, और और वो करके ही रहता हूँ। और अच्छा, तो ऐसा हुआ है कुछ लंबे टाइम तक मैक्सिमम, हाँ मेरे को ऐसा हो गया कि कभी कभी मेरे को 4 भी बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, वो मैं उसके बाद में ही लंच करता हूँ। अरे भाई साहब, क्योंकि मैं जिसके लिए आया हूँ तो मुझे एक पीस तो सेल करना है, भले रात के 12 बजे, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को रात को 12 बजे भी क्लोजिंग करना पड़ा है। एटलीस्ट मैं आया हूँ कुछ कमाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए, तो मुझे उसके लिए एक पीस तो सेल करना ही करना है। उसके लिए मैं जद्दोजहद करता हूँ। कस्टमर आते हैं, कस्टमर को अटेंड करता हूँ। दूसरी चीज़ के एक भी सिंगल कस्टमर ऐसा नहीं, मेरे बाजू में कंपटीशन भी खड़ा है तो पहली प्रायोरिटी मेरी है, क्योंकि इतने साल मैंने दिए हैं तो प्रायोरिटी मुझे मिलना चाहिए। वो मेरा हक है, वो मेरा वो सिद्धांत है। क्या बात है। जी सर, जैसे कि भाई ने बताया सेम चीज़ है। सुबह में आते हैं मस्त घूमे, ओप्पो ने बहुत मस्त अभी हमारा दिया, तो ऑटोमेटिकली सर कस्टमर हमारे पास आके रुकता है और एक ही स्माइल से वो कस्टमर को हम डील क्लोज करते हैं सर। अच्छा, हाँ, अभी जो ओप्पो हमारे को ड्रेसिंग दे रहा है, जिस तरह के सब चीज़ें हमारे को कर रही है, जो प्लेटफॉर्म पे हम थे और जो प्लेटफॉर्म पे हमारे को लेके जाना चाहती है, सीरियसली कहता हूँ सर, जो ओप्पो जो चाह रहा है वो हम करके देंगे सर। मेरा सर एक सिद्धांत ऐसा है, कोई भी कस्टमर आता है, जैसे मैंने फ़ोन बेचा या नहीं बेचा, अगर नहीं बेचा है तो मैं उसको बोलता हूँ हमेशा कि सर मेरा नंबर रखिए, कभी भी कुछ भी फ़ोन लेना हो तो ऑलवेज विजिट, आपको अच्छा सर्विस मिलेगा। और कभी भी कस्टमर ने फ़ोन लिया तो फ़ोन बेचने के बाद हमेशा बोलता हूँ आप फ़ोन यूज़ करिए बिंदास, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आई एम हियर ऑलवेज फॉर यू सर्विस, नो वरी। फ़ोन यूज़ करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए टेंशन मत लो, फ़ोन यूज़ करने के लिए ले, तब वो बंदा एक ट्रस्ट लेके जाता है कि चलो यूज़ करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम, बच्चों ने बिगाड़ दिया, सेटिंग नहीं समझ में रहे, वॉट एवर प्रॉब्लम, ये भाई मुझे जवाब देगा, और मैंने हमेशा दिया है। ज़्यादातर प्रॉब्लम तो आते ही नहीं, लेकिन एक लाइन बोलने से कस्टमर को ट्रस्ट बैठता है, नहीं ऐसे ही पैसा नहीं डाल दिया, ऐसे ही फ़ोन नहीं लिया, कुछ भी है तो ये बंदा बैठा है, बस वो ट्रस्ट देता है। और अभी तो आपका कुछ एक नया मॉडल भी आ रहा है, उसकी क्या तैयारी है? सर रेनो 16 सुनने के भी आ ही रहा है, तो बस कस्टमर को धीरे धीरे मैसेज अप्रोच कर रहे हैं कि वेट फॉर न्यू मॉडल, न्यू लॉन्च, न्यू कैमरा, न्यू एआई, तो कस्टमर धीरे धीरे वेट करते हैं, तो उसकी एडवांस तैयारी चल रही है। कस्टमर को जस्ट बताते हैं कि ये वाला मॉडल लोना, तो कस्टमर के अंदर से जिज्ञासा जाग जाती है कि ऐसा तो क्या आ रही है। Main क्योंकि चीज़ हमने सर- 14 देखा, 13 देखा, 15 देखा, अब 16 लेके आ रहे, तो इसमें क्या नवा है? कस्टमर खुद सामने से पूछता है कि अब क्या नवा है? पूरा सर वेट एंड वॉच आएगा। कस्टमर भी समझ गए कि सर हर एक मॉडल में कुछ तो नया ओप्पो लेके आती ही है। सर एक ही चीज़ सिर्फ कस्टमर को भी हम ऐसे बता रहे हैं कि सर डिज़ाइन जो आ रही है कोई भी कंपनी में ऐसी नहीं आने वाली, रेनो 16 की सर हमने नहीं देखा फिर भी हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे को मालूम है कि रेनो 16 मार्केट हिलाएगा सर। क्या बात। मोबाइल पूरी मोबाइल इंडस्ट्री में जितने भी मोबाइल अदर कंपेरिजन वाली कंपनी है ना, हिल जाएगी। हिल जाएगी, पूरी हिल जाएगा, क्विक आ जाएगा, ऐसा समझ लीजिए सर। रेनो सीरीज हमेशा साल में 2 बार आती है और बूम पड़ा देती है, उससे सैलरी एकदम इजी बन जाती है, इंसेंटिव कमाने की तो बात ही कुछ और है। और रेनो सीरीज सबसे बेस्ट कैमरे के लिए होती है, प्रोसेसर के लिए होती है, गेमिंग लवर के लिए होती है, और जिसको रेगुलरली यूज़ करना होता है, जिनका यूजिंग ज़्यादा होता है, उनके लिए बेस्ट होती है। कैमरा फीचर सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट रेनो सीरीज। क्योंकि रेनो सीरीज जानी जाती है आर्ट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के हिसाब से। उसका इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, उसका आर्ट, सारी चीज उस पर डिपेंड करती है।
पहले से जितने भी रेनो 13 सीरीज से 12 सीरीज से सब जितने भी लॉन्च आई है, सब में आर्ट इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो दिया हुआ उसमें सुपर्ब है, अपीयरेंस से लेकर सब कुछ। इसीलिए सर रेनो सीरीज कही जाती है ट्रेंड सेटर, एक ट्रेंड सेट करते हैं हम। क्या बात है। बिल्कुल। और इसी के साथ ऐसे ही ट्रेंड सेटर्स के साथ मुलाकात करते रहेंगे। ये था ओप्पो मेक मोमेंट्स की इनसाइड स्टोरीज, जहां हमारे इनसाइड के हीरो से मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। टिल देन के लिए टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।